you want to do something fancy, then I believe you should go for a startup. Actually look for a market gap. Startup, business, ये तो एक ही चीज है होते हैं। तो स्टार्टअप के विजन पे वो लोग पैसे लगा लेते हैं मेजॉरिटी टाइम। उनका क्या इंटरेस्ट होता है स्टार्टअप को लेके? एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ or his close friend. Exactly, it's 90%. 90% of the businesses are not fundable startups. Not just students, majority practicing and entrepreneurs को नहीं करता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद साद बिन मुशर्रफ विद दिस चैनल। टाइटल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टार्टअप और अ बिजनेस। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस टू टर्म and why we need to understand this meaning before diving into any other video, because majority time I get a question that startup, business ये तो एक ही चीज है, a sort of a entrepreneurship. Yes, these both are sub broad categories of entrepreneurship, but still there is a massive difference, although that difference is actually a subjective matter, because if we look for a literal meaning on Google, you will find that startup is actually an early phase of business, but unfortunately in real market startup is considered a completely different venture. Why we need to understand the difference between these two terms? Because 90% of the businesses are not a fundable startup, and we should know the exact difference between these two terms before setting up any venture. यानी कि आपको डे फर्स्ट पे दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी you should know कि whether you should opt for a startup or you should go for a business. So let's dive into each term individually. Business is actually anything, any goods or service, any product or service you are selling in exchange of money, and you are earning a revenue from that money, or a profit from that money, and you are again investing that profit and revenue and buying that good and service and again selling to the market. Just in case आपकी एक ब्रांच थी तो आपने दो ब्रांचेस कर ली, दो ब्रांच थी तो आपने तीन ब्रांचेस कर ली, but it is majority time businesses फंडेड ऑन अ बूटस्ट्रैप मेथड, यानी कि आपका अपना पैसा, आपके करीब दोस्तों का पैसा, उसकी बेसिस पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। बट इन केस ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप इज एक्चुअली, मतलब अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन बिजनेस और स्टार्टअप, कोर डिफरेंस इज समथिंग कि स्टार्टअप इज एक्चुअली लुक फॉर अ मार्केट गैप। एक कोई मार्केट गैप, मार्केट गैप से भी पहले देयर इज अ पेन पॉइंट ऑफ अ यूजर ऑडियंस, और उस पेन पॉइंट वो एक गैप कंसीडर करके, एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करके देयर कम्स एन एंटरप्रेन्योर जो उस गैप को कवर करने के लिए एक सोल्यूशन लेकर आता है, एंड दैट सोल्यूशन इज इनोवेटिव एंड not just innovative, that solution is scalable as well in future. But in case of a startup, that business is not operated on grassroots level. That business is actually came on the massive level, मतलब in a sense के पहले ही दिन में एक बड़े प्लान के साथ वो मार्केट में आते हैं, और बड़े प्लान के साथ आने के लिए ऑब्वियसली दे नीड अ इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एंड नो इंडिविजुअल हैव सच अमाउंट ऑफ मनी। देन देयर कम द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स आके उनके प्लान के ऊपर पैसे लगाते हैं। पहले उनको रिसर्च के लिए पैसे देते हैं, फिर वो रिसर्च के बाद दे कम विद अ प्रॉपर प्लान एंड एग्जीक्यूशन, और फिर देन देयर कम द सीड फंडिंग, जब वो मेजर एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, और उसी तरह फिर उसके with every scalable opportunity they get another series of funding like A, B, C, D. ठीक है, this is a short brief explanation of a startup. अब स्टार्टअप की अगर एग्जांपल्स लेना चाहें तो Google, WhatsApp and like brand like Twitter is a startup. They got to know a market gap. Just in case Twitter identified that there some be a credible news credible channel जहाँ पे sources के through आप directly ground root से news लेकर आ सकते हैं, और उसको in trends ला सकते हैं और फिर दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, because newspaper was getting digital, तो उन्होंने एक वो डिजिटल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर डेवलप करने की कोशिश की थी। कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, दैट इज सम अदर थिंग, उस पर हम बात कभी नहीं करते। सेम इसी तरह
फेसबुक वॉज कंसिडर्ड एज अ सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक यूजर ने आइडेंटिफाई किया कि देयर शुड बी सम ऐप टू बिल्ड कनेक्टिविटी बिटवीन यूजर्स, और वो वहां पर आके सोशलाइज कर सके। सेम व्हाट्सएप वॉज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे यूजर्स मैसेजिंग और कॉल्स के थ्रू कनेक्ट हो सके, ठीक है, फ्री कॉलिंग और फ्री। अब उसको हम कितना पर्पसली यूज कर रहे हैं, वो कितना अपने पर्पस और अपने गोल्स के साथ कनेक्टेड है, दिस इज समथिंग डिबेटेबल, उस पर हम कभी और बात करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक फॉर पीटीसीएल, पीटीसीएल इज अ प्योरली अ बिजनेस, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो कभी स्टार्टअप के प्लान से नहीं है। Again, if we look for another company like PIA, PIA is obviously a firm, a business, is not a startup. अब स्टार्टअप में एक इधर कोर ट्रेड और आता है जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी और रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती है उस बिजनेस में। वो स्टार्टअप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यूज करते हुए वो फ्यूचर फोरकास्ट एक दे रहा होता है कि दिस वुड बी समथिंग वेरी मैसिव इन नियर फ्यूचर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाते हैं जस्ट इन केस इफ दैट कंपनी ग्रोज बिग। तो उसके बाद जब उसमें आईपीओ होता है, आईपीओ आफ्टर द फंडिंग सीरीज, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब आईपीओ होता है तो दैट इन्वेस्टर गेट अ ह्यूज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अब कंपनी की बड़ी वैल्यू हो चुकी होती है। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उस वक्त कंपनी की वर्थ कम होती है, बट लेटर ऑन कंपनी की वर्थ बहुत बढ़ चुकी होती है। सो दिस इज ऑल। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्टअप का मेजर डिफरेंस एक ग्राफ के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन, जिसमें मेजरली आपका जो बिजनेस है, बिजनेस इज समथिंग जो कैपिटल और स्केलेबिलिटी के दरमियान में अ डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। बट इन केस ऑफ स्टार्टअप इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड कैपिटल, यानी यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इनिशियल फेज, बट very soon that startup is highly scalable at low level capital, that is when उनका जब फंडिंग राउंड्स खत्म होने की तरफ आते हैं, उनके एंड के क्लोजिंग फंडिंग सीरीज होती है, उस पॉइंट पर दे आर वेल स्टेबल, और फिर उसके बाद वो लोग ऑब्वियसली आईपीओ की तरफ जाते हैं और फिर वो बहुत स्केलेबल हो रहे होते हैं, और उस वजह से उनकी वर्थ बहुत ज्यादा, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वर्थ वो लोग बना लेते हैं, वो कंपनीज बना लेते हैं। यानी if you need a quick growth, you need a startup. If you need to have a stability और risk free तो नहीं कह सकते, but if you want a something जिससे एक reliability ज्यादा हो, तो then you should opt for a business. Or if you want to earn big or grow big, or you want to do something fancy, then I believe you should go for a startup. I believe motive of this video is achieved. So till next time, Allah Hafiz.